ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपको तमिलनाडु के वेल्लोर लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। और பாதங்களை தொட்டு நான் மீண்டும் ஒருமுறை எனது வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த வேலூர் ஆங்கிலேயருக்கு ஆட்சிக்கு எதிராக இந்த மண்ணிலே மிகப்பெரிய புரட்சி இங்கே ஏற்பட்டுள்ளது, ஏற்கனவே நடந்திருக்கிறது. அதே போல இந்த வேலூர் கோட்டையும் இந்த வேலூர் மண்ணும் மீண்டும் ஒரு வரலாற்று நிகழ்வை காண போகிறது என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் தேசிய ஜனதா கூட்டணிக்கும் மக்கள் ஆதரவு பெருகி வந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே ஒட்டுமொத்த தமிழகம் இன்றைக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது, மீண்டும் மோடி அரசு, மீண்டும் மோடி அரசு, மீண்டும். साथियों, हमें मिलकर इस 21st सेंचुरी में अपने भारत को, अपने तमिलनाडु को विकसित बनाना है. बीते 10 वर्षों में एनडीए की सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेवलप भारत की फाउंडेशन तैयार की है. आपको याद होगा 2014 के पहले भारत को कैसी नजर से देखा जाता था. हमारी इकोनॉमी वीक थी, देश में बिग या स्मॉल डिसीजंस ही नहीं होते थे, केवल स्कैम्स की खबरें आती थी. जब भी अखबार खोलो स्कैम, जब भी नेता का नाम सुनो स्कैम. भारत के बारे में कहा जाता था कि भारत की इकोनॉमी कभी भी फेल हो सकती है, हिंदुस्तान इकोनॉमिकली डूब जाएगा, ऐसा कहा जाता था. நண்பர்களே, இந்த 21வது நூற்றாண்டிலே நாம் இந்தியாவையும் நம் தமிழகத்தையும் அத்தனை பேர் ஒன்றிணைந்து வளர்க்க வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, கடந்த 10 ஆண்டுகளிலே மத்தியில் ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற தேசிய ஜனதா கூட்டணி அரசானது நல்ல ஒரு இந்தியாவுக்கான அடித்தளத்தை தயார் செய்து வைத்திருக்கின்றது. ஆனால் 2014 ஆண்டிற்கு முன்பாக இந்தியா எப்படி இருந்தது நம் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும். உலகத்தில் மிகவும் பொருளாதாரத்தில் மிகவும் பலவீனமான ஒரு நாடாக நாம் இருந்து கொண்டிருந்தது. அது மட்டுமல்ல, அந்த 2014 முன்பாக மிகப்பெரிய முடிவுகள் இந்த நாட்டில் எதுவும் எடுக்கப்படாமல் இந்த ஆட்சி நடந்து கொண்டிருந்தது. ஆனால் இந்தியாவை பற்றி எங்கு பார்த்தாலும் உலகத்தில் என்ன செய்தி வரும் தெரியுமா? மோசடிகள், இந்தியாவில் நடக்கிற மோசடிகள், இந்தியாவில் நடக்கின்ற ஊழல்கள், இது பற்றி மட்டுமே நமக்கு செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் அது மட்டுமல்ல, இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் என்றைக்கு வீழ்ச்சியடையும் என்று உலக நாடுகள் முழுவதும் பேசப்பட்டு வந்த நிலையிலே இதற்கு முன்பாக இருந்த அரசாங்கம் செய்து வந்தது. वही भारत आज दुनिया की एक ताकत बनकर के उभर रहा है. और मुझे खुशी है कि इसमें तमिलनाडु की बड़ी भूमिका रही है. भारत को स्पेस सेक्टर में आगे ले जाने में तमिलनाडु का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है. भारत को मैन्युफैक्चरिंग में आगे ले जाने में तमिलनाडु का हार्ड वर्क रहा है. मुझे विश्वास है तमिलनाडु में बन रहा डिफेंस कॉरिडोर इस राज्य को नई ऊंचाई पर ले जाएगा. तमिलनाडु के युवाओं के टैलेंट ने भारत के इकोसिस्टम को भी मजबूती दी है. இந்தியா இன்றைக்கு உலகத்தின் வல்லரசாக மாறி வந்து கொண்டிருக்கின்றது. அது மட்டுமல்ல, மேலும் தமிழகம் இதற்காக வல்லரசாக மாறுவதிலே தமிழகத்தின் பங்கு மிகப்பெரிய பங்காக இருப்பது எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி அளிக்கின்றது. விண்வெளி துறையிலே இந்தியாவை முன்னெடுத்துக் கொண்டு செல்வதிலே தமிழகம் மிகப்பெரிய பங்கை வகித்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது.
உற்பத்தியிலே இந்தியாவை முன்னோக்கி கொண்டு செல்வதிலே தமிழகம் மிக கடுமையாக உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறது பெரியோர்களே. அதே போல தமிழகத்தில் அமைந்திருக்கின்ற ராணுவ பாதுகாப்பு உற்பத்தி மையங்கள், அதன் மூலமாக பாதுகாப்பு துறையிலே உற்பத்தி செய்வதன் மூலமாக, தளவாடங்கள் உற்பத்தி செய்வதன் மூலமாக தமிழகத்தை மிகப்பெரிய ஒரு உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்லும் என்று நான் மிகவும் நம்பிக்கையோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறேன். அதே போல தமிழர்களுடைய இளமை திறமை இந்தியாவினுடைய இந்த அருமையான வளர்ந்து வருகிற சூழலுக்கு மேலும் வலுவை சேர்க்கின்ற வகையில் அமைந்திருப்பதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். साथियों, एनडीए सरकार बेलूर के लोगों की एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। उड़ान स्कीम के तहत बन रहा बेलूर का एयरपोर्ट जल्द ही पूरा हो जाएगा। इससे बेलूर एयर कनेक्टिविटी के मैप पर आ जाएगा। इससे यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत हेल्प होगी। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बेलूर से होकर गुजर रहा है। इससे यहां की कनेक्टिविटी मॉडर्न होगी। 2014 के बाद से ही एनडीए सरकार ने इस क्षेत्र में रेलवे के विकास के लिए भी बहुत काम किया है। कई स्टेशनों पर रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई भी बढ़ाई गई है ताकि ज्यादा लंबी ट्रेनें वहां रुक सके। நண்பர்களே, வேலூர் மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் அதை மனதிலே கொண்டுதான் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய அரசாங்கம் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. அதே போல உடான் திட்டத்தின் கீழே இந்த வேலூர் விமான நிலையம் விரைவில் முடிக்கப்படுவது மட்டுமல்ல, இந்த வேலூரை இந்திய வரைபடத்திலே விமான நிலையம் இருக்கக்கூடிய வரைபடத்திலே கொண்டுகின்ற கட்டாயம் நிச்சயம் சேர்ப்போம் என்று இதன் மூலம் சொல்லிக் கொள்கிறேன். இதன் காரணமாக விமான நிலையம் இங்கு வந்தால் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு இது மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என்று நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். அதே போல சென்னை பெங்களூரில் இருக்கின்ற தொழில் வழித்தடம் என்று சொல்லக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியல் கார்டு என்று சொல்லக்கூடிய தொழில் வழித்தடம் வேலூர் வழியாகத்தான் செல்லுகிறது. ஆகவே இதன் காரணமாக இது மிகவும் நவீனமயமான ஒரு ஊராக மாறிக்கொண்டிருக்கும் என்பதை நாம் கண்டுகொள்ள முடியும். 2014 முதல் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு இந்த பகுதியில் இருக்கிற ரயில்வே துறை மேம்பாட்டிற்காக பல்வேறு பணிகளை செய்திருக்கின்றோம். பல ரயில்வே நிலையங்களிலே பிளாட்பார்ம் என்று சொல்லக்கூடிய ரயில் நடைமேடைகளின் நீளம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே அதிதூர ரயில் வண்டிகள் இங்கே நிற்பதற்கு அது ஏதுவாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. साथियों, तमिलनाडु के लिए एक डेवलप भारत का नेतृत्व करने का समय है, लेकिन डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी पॉलिटिक्स में फंसाकर रखना चाहती है। पूरी डीएमके एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई है। डीएमके की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से तमिलनाडु के यूथ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके में आगे बढ़ने के लिए 3 मेन क्राइटेरिया है, 3 मेन क्राइटेरिया है। फर्स्ट, फैमिली पॉलिटिक्स, सेकंड, करप्शन, थर्ड, एंटी तमिल कल्चर। நண்பர்களே, வளர்ந்த இந்தியாவை வழிநடத்தும் தமிழகம் வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு நேரம் இது. ஆனால் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்னும் பழைய சிந்தனையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது மட்டுமல்ல, பழைய அரசியலை செய்து இதிலே நம் அத்தனை பேரும் இதிலே சிக்க வைக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றது. ஒட்டுமொத்த திராவிட முன்னேற்ற திமுகவும் திமுக குடும்ப சொத்தாக நிறுவனமாக அது மாறிவிட்டது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். திமுகவுடைய குடும்ப அரசியல் காரணமாக தமிழக இளைஞர்கள் முன்னேற முடியாமல் இங்கே வாய்ப்பே இல்லை, முன்னேறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை என்பதை நான் சொல்லிக் கொள்கின்றேன். அதே போல திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திமுக இருந்து நீங்கள் தேர்தலில் போட்டி போடணும்னு சொன்னா அதுல 3 விஷயம் திமுகவில் முக்கியமா வச்சிருக்காங்க. ஒன்னு, நீங்க மிகப்பெரிய குடும்பத்திலிருந்து வந்திருக்க அரசியல் குடும்பத்தில் வந்திருக்கணும்.
ரெண்டாவது ஊழல் பண்ணணும். ஊழல் தான் மிகப்பெரிய அளவுகோல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அடுத்து ரெண்டாவது. மூன்றாவது தமிழை கலாச்சாரத்தை எதிர்க்க வேண்டும். இது மூன்றையும் வைத்துக் கொண்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இது தமிழகத்தை பின்னோக்கி அழைத்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. करप्शन पर तो डीएमके ने पहला कॉपीराइट करवाया हुआ है. पूरी फैमिली मिलकर तमिलनाडु को लूटने का काम कर रही है. अभी खुलासा हुआ है कि सैंड स्मगलर्स ने 2 इयर्स में तमिलनाडु का 4600 करोड़ रुपीस का लॉस किया है. आप कल्पना करिए, पूरे तमिलनाडु में लूट का कितना बड़ा खेल चल रहा है. हम केंद्र सरकार से तमिलनाडु के लिए विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं. ये पैसा भी डीएमके के करप्शन की भेंट चढ़ जाता है. ஊழலுக்கு முதல் உரிமை, காப்பீட்டு உரிமை யார் வச்சிருக்காங்கன்னா திமுக தான் இந்த ஊழலை செய்வதற்கு ஒட்டுமொத்த அத்தாரிட்டி அந்த தமிழ்நாட்டில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதே போல ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் சேர்ந்து தமிழகத்தை கொள்ளையடிக்கிறத எந்த வேலையும் செய்யறதில்ல, வெறும் கொள்ளையடிக்கிறத மட்டுமே தமிழ்நாட்டில் திமுக குடும்பம் செய்து கொண்டிருக்கிறது. கடந்த 2 வருஷத்துல மணல் கொள்ளைக்காரர்கள் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 4600 கோடி ரூபாய்க்கு இழப்பை ஏற்படுகிற வகையில மணல் இங்கே கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அப்படி பார்த்தா கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க, தமிழ்நாடு முழுவதும் எந்த அளவிற்கு இந்த கொள்ளையடிக்கின்ற விளையாட்டு சர்வ சாதாரணமாக நடந்து கொண்டிருப்பதை நாம கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பார்க்க வேண்டும். அதே போல தமிழகத்துடைய வளர்ச்சிக்காக ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய்களை மத்திய அரசாங்கத்தை நாம இங்க அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அதை திமுக தன்னுடைய ஊழலுக்காக பயன்படுத்திக் கொண்டு முழுவதுமாக ஊழல் செய்து அதை கழிவறம் செய்து கொண்டிருக்கின்றது. डीएमके ने तमिलनाडु. बुलेटिन में अब सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। केजरीवाल से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। केजरीवाल को कोर्ट से फिर एक बार झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को झटका लगा है। वकीलों से मुलाकात करने की मांग की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल के सलाखों के पीछे हैं और वकीलों से मिलने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। वकीलों से मिलने के लिए उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी लगाई थी। कोर्ट से झटका लगा है और अर्जी को ठुकरा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल की बढ़ती मुश्किलों में कोर्ट की तरफ से कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं से उनकी मुलाकात के लिए भी उन्हें मना कर दिया गया। चुनाव को लेकर के अहम मुलाकात होनी थी, लेकिन कोर्ट से उसकी परमिशन नहीं मिली और अब अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है, जहां वकीलों से मिलने की अर्जी को भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फिलहाल तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक, लेकिन कितने बेबस। वकीलों से मिलने की अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, जहां वकीलों से मिलने की अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है और अब जेल की सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से भी नहीं मिल पाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहते थे, लेकिन उसकी परमिशन भी नहीं दी गई थी। बीते दिनों अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा था, जहां उन्होंने उनकी गिरफ्तारी याचिका पर सुनवाई होनी थी। कोर्ट ने गिरफ्तारी याचिका पर भी अरविंद केजरीवाल को झटका दिया और अब एक बार फिर से वकीलों से मुलाकात को लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से अर्जी लगाई गई थी, जिसको कोर्ट ने ठुकरा दिया है। यानी कि मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं और बाहर से उन्हें कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वकीलों से भी अब अरविंद केजरीवाल नहीं मिल पाएंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिलहाल तिहाड़ जेल के सलाखों के पीछे हैं, उन्हें कोर्ट से झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले उन्हें नेताओं से मिलने नहीं दिया गया और अब वकीलों से मुलाकात की मांग की अर्जी भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। पूरी जानकारी के साथ हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आयुषी, अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें थमने का नाम ले ही नहीं रही है। अब देखिए, उनके वकीलों से मुलाकात की मांग को लेकर जो अर्जी उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट से लगाई थी, उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पूरे मामले पर अपडेट चाहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल ही हमने देखा किस तरीके से हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला, जहां जो पार्टी ये कहती नजर आ रही थी कि ये गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उसी पार्टी को कोर्ट की तरफ से कहा जाता है, उसी मुख्यमंत्री को, कि तथ्यों के आधार पर ये दिख रहा है कि वो मुख्य आरोपी हैं। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री सिटिंग है फिर भी जेल में है, और ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये अपनी याचिका दाखिल की थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, जहां उन्होंने हफ्ते में 5 बार अपने वकीलों से मुलाकात करने की मांग की थी कि हफ्ते में 5 दिन उनके जो वकील हैं वो उनसे मिलने आ सकते हैं। इसकी याचिका उन्होंने दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने नियम के मुताबिक केजरीवाल को सिर्फ एक हफ्ते में 2 बार ही अपने वकील से मिलने की मोहलत दी। यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए जो नियम सबके लिए है, जो भी कैदी अभी तिहाड़ जेल में होंगे, किसी भी आरोप में होंगे, उनको जिस तरीके से हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलने की मोहलत दी जाती है, तो उसी आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी हफ्ते में 2 दिन की ही मोहलत दी गई और 5 दिन मिलने की याचिका खारिज कर दी। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़े झटके के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप जेल में हैं तो आपके पास एक ही साधन है अपनी बात रखने का सामने, और एक ही साधन है ये चीज समझने का कि आखिर आप जिस केस में फंसे वो केस अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है। एक मॉरल सपोर्ट मिलता है आपको आपके एडवोकेट से। अगर आपका एडवोकेट हफ्ते में 5 दिन आपके साथ रहता है तो कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उनको कहीं ना कहीं मॉरल ग्राउंड पे एक उम्मीद रहती है, सपोर्ट रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाया है, ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ के दिनों की जो है वो मुश्किलें बढ़ा देगी। बिल्कुल, क्योंकि जेल के सलाखों के पीछे आरोपी है, फर्क नहीं पड़ता कि वो मुख्यमंत्री है या आम नागरिक। कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की वकीलों से मिलने की याचिका को खारिज कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते में 5 दिन अपने वकीलों से मिलने के लिए याचिका लगाई थी। कोर्ट ने नियम अनुसार 2 दिन की ही परमिशन दी है। आयुषी, इसके साथ ही एक और जानकारी सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता भी अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहते थे, जिसकी परमिशन भी नहीं दी गई। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के संयोजक जेल में हैं, जिसकी वजह से जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवत मान, वो पिछले 3-4 दिनों से ये खबरें आ रही थी कि भगवत मान और संजय सिंह जो हैं वो अरविंद केजरीवाल जी से मिलने जा सकते हैं। और आज का दिन तय किया गया था। कल देर रात ही हमारे पास ये अपडेट आई थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और सांसद संजय सिंह जाएंगे तिहाड़, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से तिहाड़ जेल ने इसकी अनुमति नहीं दी। तिहाड़ जेल ने इसका सुरक्षा कारणों का हवाला दिया और साथ बिल्कुल, कहा तो सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जेल में मिलने पहुंचने वाले थे, उन्हें मिलने की परमिशन नहीं दी गई। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट से हफ्ते में 5 दिन वकीलों से मिलने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है और राहत के कोई आसार फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। आयुषी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। रोहतास पुलिस ने धौधाड़ थाना इलाके में सीएसपी संचालक बजरंगी कुमार की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 5 तमंचे, 1 पिस्तौल समेत एटीएम काटने की मशीन भी बरामद की है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को मिली है, जहां पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, इन आरोपियों के पास से कई सारी चीजें भी बरामद की गई है। 5 तमंचे समेत एटीएम काटने की मशीन भी इन आरोपियों के पास से पुलिस ने बरामद की है। बड़ा खुलासा किया है, पुलिस की टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 5 तमंचे और 1 एटीएम काटने की मशीन समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही हत्या का भी खुलासा किया गया है। बांका के इंग्लिश मोड़ का मुख्य मार्ग में डेंजर जोन महगाना मोड़ पर बाइक सड़क किनारे पेड़ से टकराने से बाइक चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना की सूचना मिलने पर रेफरल अस्पताल से एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची। दोनों जख्मी को इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस अधिकारी रश्मि कुमारी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी का गठन कर दिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 100 नेताओं को कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी दी है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक प्रीतम सिंह को उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत घसमाना ने हाईकमान के फैसले की सराहना करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। जी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। योग्य नेता है, बहुत तजुर्बेकार नेता है। लगातार उत्तराखंड की हर असेंबली में वो मेंबर रहे, राज्य के मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश की असेंबली में मेंबर रहे, उत्तराखंड में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। उनसे ज्यादा तजुर्बा किसी को है नहीं। मैं समझता हूँ पार्टी ने बहुत समझदारी का काम किया है। श्री प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में हम सब लोग कैंपेन कर रहे हैं और करेंगे आगे भी। एटा में तैनात सब इंस्पेक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक एसआई एटा के सकिट थाने में तैनात था। सूचना मिलने पर पहुंचे एसएसपी धनंजय सिंह कुशवाहा ने मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। सकीट थाने में तैनात पुलिसकर्मी की हार्ट अटैक से अचानक मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर की हार्ट अटैक से मौत की खबर सामने आई। झांसी में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बता दें कि पूरी घटना झांसी मणिकपुर रेलवे लाइन पर मौरानीपुर रेलवे स्टेशन के आगे ग्राम मैलोनी के पास की है। बैतूल से बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बसपा प्रत्याशी की मृत्यु के बाद बैतूल सीट पर चुनाव को स्थगित कर दिया गया है, जिसको लेकर बैतूल जिलाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि बैतूल के बीएसपी प्रत्याशी अशोक भलावी का हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया। हमने चुनाव आयोग को इसकी सूचना दी है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत 26 अप्रैल को द्वितीय चरण का जो मतदान होना था उसे हमने स्थगित कर दिया है। लोकसभा निर्वाचन 2024 में जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बैतूल के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो बहुजन समाज पार्टी है, इसके अभ्यर्थी श्री अशोक भलावी जी का आज दुखद निधन हुआ है। ये उनका हृदय गति से उनका रुकने से उनके निधन की सूचना प्राप्त हुई, उसकी हमने पुष्टि की है। पुष्टि करने के बाद माननीय निर्वाचन आयोग को हमने उसकी सूचना प्रेषित की है। और ये जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि अग्रिम प्रक्रिया क्या होगी, तो अग्रिम प्रक्रिया में जैसे मैंने आपको बताया कि हमने
निर्वाचन आयोग को जानकारी प्रेषित की है और साथ ही साथ लोक अतिरिक्त अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत हम लोगों ने जो 26 अप्रैल 2024 को मतदान होने वाला था द्वितीय चरण का, उसको हमने भी स्थगित किया है। इस संबंध में माननीय निर्वाचन आयोग से जो भी निर्देश। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप देखते रहिए TV27 न्यूज।